So before starting, na, what we can do, you can write your background just to get an idea, so that na, you will also know the other participant profile. So in what you can do in your single message, you can write your graduation, post graduation, if you have done. Then where are you working, and you are from which city. Hmm? Write everything in one message, na, so that it will be easy for us to or others to read. Yes. Good evening, CP sir. Good evening, Sushil sir, and good Yes. evening, everyone. So glad to see so many of you have come today. तो सुशील सर आप ही होस्ट कीजिएगा Yes. Yes. because Yes. you are more into student coaching and updated with all development. So I will come wherever required more of the experience sharing. वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ काफी टाइम से, but आजकल थोड़ा कम हो रहा है. So that's not a worry. But about RBI, about experiences, about anything, or about the repression strategy also, I can add definitely because repression strategy is one very, very important aspect we shall talk about. So all please keep your mic off. Yeah. Swarna ma'am, if you are there now, please make me go so that I can switch off the I'm mic. doing. Yes. Yes, so I am reading the messages. Sushil sir, you need to unmute. Actually, I muted everyone, so I guess you also got muted. Okay. Yeah. Yeah. Now am I audible? Yes. Yes. Okay. MBA HR Nagpur. Did BTech in 2014 from Jodhpur. BS MS Economics. IISCR. It is very good college. I know this college. Yes, this is like into basic sciences, na. Just we have IITs, na, for technology. So these IISCR are for those who want to go for basic sciences. So this is good college. IISCR Bhopal. Then VIT Pune last year. MBA SBI Korba Chhattisgarh. MSc Chemistry. BTech BCom. So students are from different backgrounds, and one Anshuman is from NIBM, and NIBM is actually RBS College, National Institute of Bank Management, and in board, like governor is chairman, and the chairman and CEO of other banks are also there. It's very good college if you want to do main your career into banking. This is very good college. Then graduation in BA, MBA, Financial Services. Then yes, Vinay, thank you. Graduate Assistant Manager, Union Bank, Nagpur University, AKTU University, BCom Nagpur. So we have students from different backgrounds, BA, BCom, BSc, and yes, I had joined RBI. Okay. PhD scholar is also there. Hemant is PhD scholar. He is doing PhD in management from Andhra University. Last year also, I remember one girl from our institute got selected, and I think she has done PhD in mathematics. PhD in mathematics. So development officer in LIC. Yeah, assistant manager in Indian Oil Corporation. So we have people from different background and different like those. Some are working in the last year of engineering, some are doing job in banks, and some are PhD. So let us start our workshop. And here we both, like CP sir, Chandraprakash Joshi sir, and me, are here to answer all your queries. All your queries related to RBI Grade B examination, and you can ask anything about the job also, because we both work in the Reserve Bank of India. Like I resigned after 3 years, and CP sir took one promotion at the AGM, and then he resigned. Yeah, correct. So I'm starting my PPT. Yeah. Can you see the PPT? Yes. Yes. Yeah. So अभी हम स्टार्ट करते हैं. Here like हमने कहा है कि 7 steps हैं. तो like हमें जो बताना है वो हमने 7 parts में यहाँ पर डिवाइड किया है. तो ये थोड़ा इंटरेक्शन होने दीजिए. Means you also this question here, it should not happen like that. We are just only talking and you are listening.
So it should be a two-way communication. You can type your questions in the comment section also, or in between also you can ask. ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक होता है ना, फॉर एनी एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, देन यू शुड नो, वी कैन से द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, आई थिंक सबको ये पैटर्न तो पता होगा. जस्ट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि am I audible? Because King Khan is saying that no sound. You are audible. I think King, आपके एंड पे कुछ दिक्कत है. Okay, ठीक है. तो just to check your awareness about the examination, आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में इतना बताइए कि जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के लिए कितना टाइम होता है एग्जाम. जस्ट यू शुड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है एंड रीजनिंग जो सेक्शन है, उसके लिए फेज 1 के एग्जाम में हाउ मच टाइम यू हैव. 60 मिनट्स, 25, 40, 20. देखो, मतलब मैंने इसलिए पूछा है ना कि कुछ लोगों का सही नहीं आया है. यस, बाकी यस, कुछ लोगों ने, प्रगति ने सही कहा है. यस, प्रगति ने. यस, ठीक है. तो ये देखो, इसलिए मैंने पूछा ना कि मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं पता. या गुड इवनिंग. यस, सो यू शुड नो, इट्स वेरी इजी. मैं आपको बताऊंगा कि देखो क्या होता है ना, अभी मुझे याद है कि परसों के मेरे क्लास में ना स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता है. तो मैंने ना एक्सपेरिमेंट किया था क्लास में 15 मिनट का, और सब स्टूडेंट को सब याद रह गया. मतलब वो कुछ करना पड़ता है. तो अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ. रीजनिंग है, काफी पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, तो इसलिए उसको 45 मिनट्स दिया है. फॉर रेस्ट ऑफ द सेक्शन 25 मिनट्स. इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर. रीजनिंग को 45 मिनट्स है एंड रिमेनिंग 3 सेक्शन को 25, 25, 25. ठीक है, करेक्ट है ये? अभी मैं बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ये बताइए. पहले अर्लियर दे यूज्ड टू गिव द consolidated, I think 120 or 130 minutes. कभी 130 थे, कभी 120 minutes थे. Consolidated, उसमें you have the option to skip one section, you can come back to that section once again. अगर आपका कोई जल्दी हो गया, so you can leave that section. लेकिन अभी ऐसा नहीं है यहाँ पर. Now, yes, now here you have a 45 minutes for reasoning, 45 minutes, and then 25, 25, 25 for your other sections. ठीक है? Yes, sectional time. Yes, sectional timing है. मतलब if you see last year notification 21 and 22, it's there, and actually RBI is changing the pattern sometimes, or the eligibility criteria after every 5 years. तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अभी डरने की जरूरत नहीं है, because last time I think they changed in 2021. थोड़ा चेंज किया था. अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, मोस्टली यही रहेगा. और देखो, whatever might be the changes, आपको उसके डरना नहीं है. whatever might be the changes, we are there to help. कुछ भी होने दीजिए. ठीक है, whatever might be the syllabus, whatever might be the pattern of examination. ठीक है. Yes, okay. तो ये है, आपको सबको अभी पैटर्न पता चल गया है फेज 1 का. नाउ टेल मी, इन फेज 2 in FM, ESI and FM in descriptive, how many questions are there and how many you have to attend? इसका एक क्वेश्चन आंसर दीजिए, सो दैट ना वी विल फिनिश द पैटर्न पार्ट. मेरा क्वेश्चन ये है कि इन फेज 2 एग्जामिनेशन इन ESI and FM in descriptive papers, how many questions they will provide to you and how many questions you have to attempt. I am talking about descriptive. I am talking about ESI and FM. चलिए बताइए. Yeah, 25 objective and 25 descriptive. Yes. So I asked about the descriptive. So in descriptive now you will get 3 questions, 15 marker, out of which you have to attempt any 2. ठीक है, 15 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, आपको वो लिखने हैं, and each question should be of 600 words. देखो, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई अगर आपने हमारा प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस हमने स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है. ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे, आउट ऑफ व्हिच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2. यस, तो गावंडे आपने जो लिखा है ना, इट इज नॉट 4 आउट ऑफ 6. ठीक है, 4 आउट ऑफ 6 का मतलब अलग है. ठीक है, 4 आउट ऑफ 6 का मतलब अलग है. फ्रॉम 3 यू हैव टू अटेम्प्ट 2 एंड अदर 3 यू हैव टू अटेम्प्ट 2. ठीक है, कोई भी 6 में से कोई भी 4 नहीं कर सकता. ठीक है, and for 400 marker question you have to write answer in 400 words. 10 marker के लिए 400 words है,
15 मार्कर के लिए 600 वर्ड्स है। इन सिंपल वर्ड्स 5 मार्क्स के लिए आपको 200 वर्ड्स लिखना है, ठीक है, 200 वर्ड्स लिखना है। तो सबसे पहले जो स्टेप है कि यस, एम आई ऑडिबल सीपी सर, एम आई ऑडिबल? Yes, Yeah. sir, you are audible. Yes, Clearly. Yes, Yeah. audible. Your connection. Please check your connection. ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। सो अभी हमने वो कवर कर लिया। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड नाउ वी आर टॉकिंग बेस्ड ऑन द लास्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, लास्ट नोटिफिकेशन के बेस पे हम कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम चांसेस यही है कि यही कंटिन्यू रहेगा, बट स्टिल पीपल हैव सम काइंड ऑफ fear in mind that they will change the pattern, they will include the biology, they will include the zoology, they will include the astronomical science। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। So don't worry about it। थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो हमें पता है, मतलब होके क्या हो, ठीक है। Yes। Phase 1 level is higher than IBPS। देखो यहाँ पर ना, before happening of any examination, we cannot comment about the level। If you have seen this year's IBPS PO mains, then its cutoff of font was less than 5%. How many of you have attempted this as IBPS PO mains examination? कि जिसका जो कट ऑफ था वो 5 मार्क था आउट ऑफ 60, ठीक है, 5% से भी कम था, 5% से भी कम था, आई थिंक 2.5 समथिंग था। तो इसका मतलब है कि यस मानसी, यस आपने दिया है। तो पेपर नाउअडेज इज कमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, बिकॉज इन 2019 द पेपर वाज वेरी इजी, एंड कट ऑफ वाज 122, ठीक है, कट ऑफ वाज 122। चलिए, अभी पहला स्टेप हमने देख लिया है कि पैटर्न जो है फेज 1 का पैटर्न कैसा है, फेज 2 का पैटर्न कैसा है, ठीक है, ये हो गया हमारा पैटर्न के बारे में। तो अभी सेकंड टाइम अभी आते हैं हम। सबसे पहले ये तो आपने लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये जो डेट्स है मैंने तो आपको पहले ही बता दी थी, बट स्टिल वी वांट टू सी एक्चुअल नोटिफिकेशन, ठीक है। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स क्यों इतना वेट करते हैं ना कि अभी नोटिफिकेशन आ जाए, अभी डिटेल पता चले हमें। तो देखो, जो सिंसियर स्टूडेंट है ना, वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देता है जैसे पिछला एग्जाम हो गया, ठीक है, बट स्टिल यू हैव अ time, and this year they have released the short notification much before, otherwise they will give just 40 days, sometimes 38 days, 45 days। तो ये आ गया है, यानी कि अभी सर्टन है कि एग्जाम होने वाला है। क्योंकि क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में थोड़ा सा डाउट होता है, एग्जाम होगा इस साल, होगा नहीं होगा, ऐसे चक्कर में हमें नहीं पड़ना, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कल ही एक काफी अच्छा न्यूज मिला मुझे कि आरबीआई, अभी देखो यहाँ पर कौन लिख रहा है यहाँ पर, सो दिस इज अ काइंड ऑफ दिस वन शुड नॉट डू, ठीक है, जिसने लिखा है वो मिटा दीजिए। एक मिनट, ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे होते रहता है। चलिए, तो कल ही आरबीआई का जो इंटरनल प्रमोशन होता है ना, असिस्टेंट से लेके असिस्टेंट मैनेजर, उसका रिजल्ट आया, और मुझे 8-10 हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि ना इस बार हमने इंटरव्यू लिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि सर आप आरबीआई से है तो हमारा इंटरनल का इंटरव्यू लीजिए। अब लोगों ने काफी अच्छा रैंक किया है, सिंगल डिजिट रैंक भी किया है। तो नियर अबाउट 440 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उसमें। सिलेक्शन मतलब एग्जाम होता है, वो वन एग्जाम इज देयर एंड देन इंटरव्यू इज देयर। सो इफ यू सी दिस इज द लैडर, सो सपोर्ट स्टाफ, दिस इज द सपोर्ट स्टाफ। इसके अंडर दो आते हैं, एक आता है क्लास 3 और एक आता है क्लास 4, ठीक है। क्लास 3 मीन्स असिस्टेंट, ठीक है, जो असिस्टेंट है जिसको क्लर्क कहते हैं वो क्लास 3 में आता है, एंड क्लास 4 इज ऑफिस अटेंडेंट। पहले इसको पीयून कहते थे, लेकिन अभी ऑफिस अटेंडेंट करके थोड़ा सा नाम वहां पर दिया हुआ है। देन ये होता है ग्रेड ए। ग्रेड ए इज असिस्टेंट मैनेजर। अर्लियर आरबीआई यूज्ड टू रिक्रूट फॉर ग्रेड ए आल्सो एंड ग्रेड बी आल्सो, लाइक नाबार्ड इज डूइंग नाउअडेज। लेकिन आरबीआई ने ये रिक्रूटमेंट बंद किया डायरेक्ट ग्रेड ए का। Now they are recruiting grade B. So when you join RBI, then you will join at the, we can say, middle management level. Because when I join RBI, then on our induction trainings day 1, तब हमारे जो सर थे उन्होंने कहा है कि you have entered this organization and on day 1 you are senior to 15,000 people.
मुझे बताइए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और आप पहले ही दिन 15,000 लोगों को सीनियर हो गए, ठीक है, 15,000 लोग आपके मतलब लैडर में नीचे है। सो दिस इज वेरी हाई लेवल पोस्ट, ठीक है। अभी अभी तो काफी अवेयरनेस है, लेकिन हम जब पहुंचे थे तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि ग्रेड बी क्या है। तो पहले लोगों को लगता था कि ग्रेड ए ऊपर है, उसके नीचे ग्रेड बी है, बिकॉज इन नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब इट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। लेकिन आरबीआई में उल्टा है, इट्स ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये मतलब मोस्टली ई होता है, एफ है, ठीक है। सीजीएम एंड पी सीजीएम आर ग्रेड आर। सो बताने का पर्पस ये है कि when you are entering to RBI, you are entering at a very high level, very high level, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आप ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पिरामिड में काफी ऊपर के साइड में एंटर कर रहे हो, और काफी यंग एज में लोग यहाँ पर एंटर होते हैं, ठीक है। मैंने पिछले 2-3 साल का जो एनालिसिस किया है, आपको पता है कि यू विल सी स्टूडेंट्स फ्रॉम द ऑल बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मेरा एज 21 है, मेरा एज 30 है, मेरा एज 33 है, आई हैव अ गैप। कोई भी रीजन है ना आपके बीच में, सिलेक्शन के बीच में नहीं आ सकता। ओनली प्रिपरेशन एंड ओनली प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज ना काफी, आपको पता है कि सोशल मीडिया है यहाँ का, काफी सारे लोगों की थोड़ी निगेटिविटी आ जाती है, लेकिन आपको बस फोकस करना है कि मुझे कैसे पास करना, ठीक है। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके ऊपर आपको कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज सीपी सर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस देन यू कैन ऐड। सर इसमें तो मैं एक ही चीज ऐड करूंगा, जो आपने बोला कि मैं तो जब इंटरव्यू देने गया था तो दैट टाइम सम ऑफिसर ब्रीफ्ड कि आरबीआई ग्रेड बी इस लेवल पे होता है और इसमें इतने करियर प्रमोशन है कि आप डिप्टी गवर्नर तक जा सकते हो। तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा नर्वसनेस और बढ़ गई थी कि दिस इज गोइंग टू बी ए रियली सीरियस इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू वाज गुड बिकॉज वो लोग बहुत कॉर्डियल होते हैं। तो दैट देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि दिस इज रियली ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और जब हमने एग्जाम दिया था हमें भी नहीं मालूम था कि ये कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और आरबीआई में जाने के बाद पता लगा कि दिस एक्चुअली गिव्स यू सच एन अपॉर्चुनिटी टू नो द वर्ल्ड। इनफैक्ट कई बार मेरे को लोग पूछते हैं कि आप इतनी तारीफ करते हो आरबीआई ग्रेड बी की, फिर आपने छोड़ा क्यों? तो मैं एक ही लाइन में बोलता हूँ, क्योंकि वहां जाने के बाद हम इतने काबिल हो गए बिकॉज दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर आरबीआई गेव, कि अब ये लगा कि यार इसके बाहर भी हम निकल सकते हैं। बिकॉज इफ एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्स यू सो मच दैट यू कैन स्टैंड ऑन योर फीट एनीवेयर, so that is really a great institution. So whatever I am doing today, all credit goes to the job, the opportunity which I got in RBI at a very young stage. Such an opportunity to do all kind of work, because I don't want to elaborate more on my experience or Sushil sir's experience. Rather, we will focus more on the exam, Yes, that how to crack the exam. तो जॉब जबरदस्त है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन एग्जाम कैसे क्रैक करना है। तो सर आगे बढ़ते हैं हम उस पर। तो यहाँ पे ना मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो इंटरव्यू में पूछा था। देखो आप यहाँ पे एक लेटर में देखेंगे ना, तो गवर्नर के ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में कि आरबीआई को कौन चलाता है, हु इज रनिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। आरबीआई का जो बोर्ड है उसमें गवर्नर इज जस्ट वन मेंबर, वो कोई ऐसे चेयरमैन वहां पर नहीं है, ही इज द वन मेंबर। कोई भी डिसीजन जो होता है वो कंसेंसस से होता है, एंड देयर आर मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द आरबीआई, जैसे गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है, देयर आर सम आईएएस ऑफिसर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बताएगा मुझे कौन से मिनिस्ट्री के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं? जस्ट इन 15 seconds, there are 2 IAS officers on board. Tell me the name of the departments है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो वो डेफिनेटली है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज डेफिनेटली, लेकिन उसके वहां के कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। करेक्ट, करण ने आंसर दिया है, 2-3 लोगों ने सही आंसर, क्योंकि ये एग्जाम में आया था, ठीक है। दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी होते हैं वो यहाँ पे होते। तो और बाकी आपको पता है सतीश मराठे है, गुरुमूर्ति है, आनंद महिंद्रा सर भी है बोर्ड में। तो काफी बोर्ड, डाइवर्स लोगों का बोर्ड होता है, और वो कंसेंसस से डिसीजन देता है।
एवरी मंथ उनका मीटिंग होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंटरव्यू में आ सकता है और फेज 2 में भी, फेज 1 में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बिल्डिंग है, सीपी सर को याद होगा ये बिल्डिंग, मुझे भी याद है, मेरा फर्स्ट जो एंट्री था आरबीआई में ये है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, इट इज इन चेन्नई। काफी जबरदस्त बिल्डिंग है ये, लेकिन अभी क्या है ना, हमारे टाइम पे, मुझे याद है मेरे टाइम पे सिर्फ 80 वैकेंसी थी। आई थिंक सर के टाइम पे तो कम भी वैकेंसी होगी। हमारे तो 55 थी, 32 का बेस्ट था हमारा जब हमने ज्वाइन किया था, दो इंडक्शन यस हुए थे। यस यस। तो उस टाइम क्या था ना, ये बिल्डिंग अभी छोटी पड़ने लगी, क्योंकि अभी ना बैच साइज काफी बड़ा हुआ है। अभी ना 200 का बैच, 300 का बैच, 350 का बैच आ रहा है। तो अभी क्या है ना, आरबीआई के पास उतना कैपेसिटी नहीं है, सो नाउ दे आर टेकिंग सम हेल्प फ्रॉम द एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट। तो आई थिंक अभी ना कोई एमईटी कॉलेज में नोएडा के आसपास कुछ तो भी ट्रेनिंग हुआ इस टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम नालसार में हुआ, उसके पहले ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट में हुआ चेन्नई में। तो ऐसा होता है, एंड आपको यहाँ पर बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। हमारे बैच में मुझे याद है कि गवर्नर आए थे, डी सुब्बाराव करके गवर्नर आए थे वहां पर, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे याद है। मतलब कैसे डिसीजन होता है आरबीआई में, मैं बताता हूँ आपको। हमारा मीटिंग चल रहा था और उनके दिमाग में कुछ आया कि नाउअडेज ना पीपल फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एटीएम्स, ये 2012 की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, उन्होंने उनके सेक्रेटरी को फोन लगाया और कहा कि ये कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, हम क्या करते हैं, चेन्नई में एक सर्वे करते हैं। तो उन्होंने फोन लगाया, दूसरे दिन 20 कार्स आ गई, 20 कार आ गई वहां पर, हर गाड़ी में 2 लोग बैठे, और पूरा चेन्नई में अलग अलग एरिया में हमको भेजा, और हमने सर्वे किया कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं नोट्स के, और वो सर्वे का रिपोर्ट सबमिट किया, एंड विद इन 10 डेज गवर्नर ने उस पर एक्शन भी लिया। मतलब देखो, इतना फास्ट डिसीजन मेकिंग हुआ उसमें। उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया उसके बाद कि ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये आरबीआई में काम करना मतलब पूरे जो आपकी इकोनॉमी है ना, इसके छोटा छोटा जो एस्पेक्ट है उसको टच करना। यस, तो अभी यहाँ पर ना ये थोड़ा सा एक बीच में मैंने ना सीपी सर एक पोल कंडक्ट किया था। तो वहां पर मैंने पूछा कि सपोज इफ यू हैव 2 ऑप्शन इन योर हैंड, one is RBI Grade B and another you have a offer from IIM Ahmedabad, Bangalore and Kolkata, तो आप क्या करोगे? तो वो ग्रुप एक्चुअली आरबीआई का था, इसलिए थोड़ा बायस तो आएगा ही आएगा, बिकॉज दैट ग्रुप इज फॉर आरबीआई। स्टिल मतलब 78 लोगों ने कहा कि वी विल जॉइन आरबीआई एंड 24 हैव डिसाइडेड टू गो एम एबीसी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ना एवरी ईयर अभी हम इंटरव्यू लेते हैं ना, हमारे स्टूडेंट में से एक दो तो होते ही होते हैं कि दोज आर फ्रॉम आई एम बैंगलोर एंड कोलकाता। अहमदाबाद का भी मुझे मिला नहीं पिछले 7-8 साल में, बट एवरी ईयर कोलकाता या बैंगलोर से कोई ना कोई होता है। अदरवाइज एमबीए नॉर्मल जो इंजीनियरिंग कॉलेज है या एमबीए कॉलेज है वहां से तो होते ही होते हैं। तो ये बताना इसलिए जरूरी है कि दिस जॉब इज वेरी वेरी गुड। आपको इसमें जाने के लिए कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना है, जैसे 2 साल एमबीए करने के बाद आपको इन्वेस्ट करना पड़े। ठीक है, बाकी एज प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ, यानी कि किसी को भी डाउट ना आए। देखो 22 साल की, मुझे याद है एक 22 साल की एक लड़की है, इनका पॉलिटिकल साइंस में बीए हुआ था। ठीक है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। 34 जिसका एज है, 33 एज है, इनका भी हुआ है। मैक्सिमम जो एज है ना, आपको पता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कर्व होता है, वो तो मैक्सिमम लोग आपको यहीं पे मिले, और आप में से भी मैक्सिमम लोग इसी एरिया से। तो बिल्कुल नहीं आपको करना है। और ये मेल फीमेल का जो रेशो है इस बार काफी अच्छा था सर, अदरवाइज ना 20 के आसपास रहता है, मैंने देखा है 20-25, इस बार 28 है, 28 रेशो है, ये ठीक ठाक रेशो है। तो जो यहाँ पे लेडीज गर्ल्स है उनको, क्योंकि देखो आरबीआई में क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं है गर्ल्स की। फॉर स्टेट गवर्नमेंट इज देयर, फॉर स्टेट गवर्नमेंट इज देयर 30% होता है, लेकिन इसलिए अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो देन योर चांसेस विल बिकम वेरी हाई इन द फाइनलिस्ट टू गेट इनटू फाइनलिस्ट। ठीक है, ये ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन का प्रोफाइल है, ये इंजीनियर्स है। व्हाई सो मेनी इंजीनियर्स? बिकॉज उनका नंबर भी ज्यादा है। ठीक है, उनका नंबर भी ज्यादा है। और हमारे साथ जो सीपी सर है, इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, सर इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एंड देन एमबीए फ्रॉम द आईएसबी। तो मतलब बाकी बैकग्राउंड के देखो, ये है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, एंड देन इंजीनियरिंग। और बाकी अलग अलग, ये इसलिए मैंने दिया है ना कि यू कैन आइडेंटिफाई दैट पीपल लाइक मी हैव गॉट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। बताने का पर्पज यही है, लास्ट ईयर हमारे जो 115 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उनका ये डेटा है। ठीक है, उनका ये डेटा है। देखिए बीएड, मतलब बीएड किया हुआ है, बीएड जिनका एम था मुझे टीचर बनना है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है।
ठीक है, LLB भी है। और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो सीए का नंबर थोड़ा सा कम है, सीए का नंबर कम है। प्रॉब्लम ये है आरबीआई में ना कि इनिशियल जो फेज 1 है वहां पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जितने सारे नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको ये एडवाइस है कि क्वांट और रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अभी आपने देखा होगा कल ही करण सर ने एक लाइव क्लास लिया था, लाइव क्लास जहां पर उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए पहले एंड देन उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो आज हमने रीजनिंग के लिए किया है, इस तरीके से हम क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए के लिए करते रहेंगे सो दैट यू कैन गेट दी एक्चुअल फीलिंग। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ला लिया और पूछ, ठीक है। कि ग्रेजुएशन कौन कौन से कॉलेजेस से है तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। देखो इसमें आईआईटी के 22 लोग थे, लेकिन मैक्सिमम जो लोग थे 35 ऐसे कॉलेजेस से थे जिनको कोई जानता नहीं। सिंपल कॉलेज जो है, सिंपल कॉलेज, ठीक है, सिंपल कॉलेज से स्टूडेंट थे। ये बताने का पर्पज ये है कि सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू रजत। पर्पज यही है कि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि यार मेरा भी सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस देने का पर्पज है। और ये अभी आते हैं हम कट ऑफ पे, ठीक है। आज ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो अगर आप देखेंगे ना तो देखो ये है 2019 में 122 कट ऑफ और उसके नेक्स्ट ईयर में नियर अबाउट हाफ हुआ, नियर अबाउट 45-50% से डाउन हुआ। इसका मतलब है ना आपको बिल्कुल कोई एक नंबर रख के नहीं जाना है फॉलो। यू शुड बी रेडी फॉर 122 ऑल्सो एंड 63 ऑल्सो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक याद रखना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्वांट और रीजनिंग में सेक्शनल कट ऑफ में फेल हो रहे हैं, इतना आपको ख्याल रखना है। उसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको करनी है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा हिंदी में बात करने में ऐसा लगता है कि मुझे वो क्या जज करेंगे अगर मैं हिंदी में बात करूंगा, तो उनको वो मुझे अच्छा समझे कि नहीं समझे। इसलिए अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर ये जो स्टूडेंट है इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया है। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मींस वेरी 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 हाई, तब सबसे टॉप लेवल पे है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। स्टिल उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल गिव इंटरव्यू इन हिंदी। उनका हमने सक्सेस स्टोरी भी किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो, उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और ये जो है ये भी ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे आई एम लखनऊ। और देखो मतलब ऐसा उनका 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये बताने का पर्पज ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई आईआईटी आईएम से होगा तो उनका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, ऐसा भी नहीं। ऑल विल बी कंसिडर्ड एट द सिमिलर लेवल। तो आप बिल्कुल वो दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कुछ लोगों को डर लगता है कि सर मैं सिंपल कॉलेज से हूँ, आई एम फ्रॉम द सिंपल ग्रेजुएशन, तो मेरा सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबका सिलेक्शन होगा। और ये जॉब वाइज है, पब्लिक सेक्टर बैंक के कितने हैं, आरआरबी के कितने हैं, ये थोड़ा सा प्रोफाइल हमने किया है, ठीक है। उसके बाद ये देखो नो जॉब्स वाले कितने लोग हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो थे नो जॉब्स वाले थे 42 जो लोग हैं आउट ऑफ 115, इनके पास कोई जॉब नहीं थी। 12 लोगों के पास प्राइवेट जॉब था, कुछ लोग आईटी में थे, कोई अमेजन में थे, डेलॉइट में थे, केपीएम के थे। तो जो लोगों के पास जॉब नहीं है, दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, आपको बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा है 115 स्टूडेंट का जो हमारे स्टूडेंट सिलेक्शन हुए थे, कोई मतलब डायरेक्टली बायोडेटा से निकाला हुआ डेटा है। और सिमिलर टाइप का डेटा पूरे आप स्टूडेंट्स को निकालेंगे वो हो जाए, ठीक है। और ये मतलब आपको पता है ये मैं रघुराम राजन के साथ था, उस टाइम गवर्नर थे। एंड देन फिर चक्षु सर ने भी ज्वाइन किया था, उनका रैंक ऑल इंडिया 7 था। और मतलब हमें बताने में ये बहुत अच्छा लगता है कि आई एग्जाम भी एक ऐसा एकलौता प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आरबीआई के कितने लोग हैं, डॉक्टर शर्मा सर तो IIM अहमदाबाद में सर इंग्लिश पढ़ाते हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी। IIM अहमदाबाद में जाते हैं, सर ने खुद IIT कानपुर से PhD किया हुआ है। उसके बाद सीपी सर है, मैं हूँ, चक्षु सर है, और हम सब लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसे लोगों से पढ़ने को मिलेगा कि जिन्होंने ये एग्जाम खुद पास किया, ठीक है। और मैंने तो पास किया है, लेकिन मैंने अभी मेरा ये 10th ईयर है, 10वां साल है मेरा। कम से कम मुझे लगता है मैंने अभी गिने भी नहीं है, 700-800 स्टूडेंट तो डेफिनेटली होंगे कि जो आरबीआई में गए हैं। और मुझे अभी भी मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ हेल्प लगती है कभी कभी। जैसे अभी एक स्टूडेंट का फोन आया था, वो मेरा पहले बैच का स्टूडेंट था, सो नाउ ही इज गोइंग टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स टू डू अ
पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। 80 लाख रुपीस का खर्चा आने वाला है एंड आरबीआई इज गोइंग टू पे 80 लाख रुपए लगते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में पूरा का पूरा जो खर्चा है वो आरबीआई का। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट you are going there for your education, your family will be here in India, you can continue your RBI quota and you will get 1/3 salary। देखो मतलब कितना सोचा है, आप वहां पर पढ़ने के लिए जाओगे एक साल के लिए, तो आपकी फैमिली कैसे रन हो, अब फैमिली कैसी चले, तो वो आपको 1/3 सैलरी आपकी चालू है, ठीक है। बस एक कंडीशन ये है कि आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स यू हैव टू स्टे विद आरबीआई फॉर 5 years, क्योंकि इतना पैसा खर्च किया तो एक बॉन्ड होता है वो आपको साइन करना होता है, क्योंकि इतना पैसा क्यों खर्च किया आरबीआई ने, सो दैट यू कैन यूज दैट नॉलेज इन योर वर्क, ठीक है, इन योर वर्क। ये फैकल्टी है। उसके बाद एक शंकर सर भी हमारे यहाँ पे काफी फॉरेन एक्सचेंज में इसमें काफी उनका ये है, तो इज काइंड ऑफ अ पार्ट टाइम फैकल्टी है। तो सर का भी एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, पूरे लेवल पे काम किया। बाकी भी फैकल्टी आप सबको पता है, ये रिजल्ट्स है। एक अभी क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है आपको, आपको ना आरबीआई के 5 गवर्नर्स का नाम बताना है, आज से लेके प्रीवियस 5 गवर्नर्स, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, इंट्रो में तो पूछते हैं, जस्ट चेक योर अंडरस्टैंड। फ्रॉम टुडे राइट द नेम्स ऑफ द 5 गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। शक्तिकांत दास से स्टार्ट कीजिए और उसके पीछे 1 2 3 4 5 चलिए, एक ही लाइन में लिखिए in the single message so that now it will be easy to read। just check your understanding, मतलब खुद को पूछिए कि यार नहीं, देखो सीडी देशमुख is the 3rd governor in the sequence, आज से लेके 5 गवर्नर, ठीक है। शक्तिकांत दास करेक्ट, देन उर्जित पटेल यस, देन रघुराम राजन, देन देखो सीडी में देखो क्या हुआ है, प्लीज लिसन माय क्वेश्चन। देखो इंटरव्यू में भी ऐसा होता है, व्हाट आई हैव आस्क्ड राइट द नेम्स ऑफ द 5 गवर्नर्स ऑफ आरबीआई फ्रॉम टुडे बैकवर्ड 1 2 3 4 5। शक्तिकांत दास के पहले कौन था, उनके पहले कौन था, उनके पहले कौन था, उनके पहले कौन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक देखो ना किसी ने जवाब नहीं दिया, बिकॉज ना एक्चुअली वी हैव द हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। अभी पढ़ता हूं मैं शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, डी सुब्बा राव एंड सी रंगराजन नहीं। हेमंत आपका एक मिस हो गया, बिफोर डी सुब्बा राव वाई वी रेड्डी वाज देयर, ठीक है। यस, ए बी सी डी आपका थोड़ा आगे पीछे हो। देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्यों जरूरी है, कुछ लोगों को लगता होगा सर ऐसा नहीं। सीपी सर एक बार मुझे याद है ना, एक स्टूडेंट को उन्होंने क्वेश्चन पूछा इसी तरीके का, तो उसका आंसर था सर आई नो ऑल द गवर्नर्स फ्रॉम दी ऑसबॉर्न स्मिथ। उसने कह दिया ऑसबॉर्न स्मिथ, जेम्स टेलर, सीडी देशमुख, पीसी भट्टाचार्य, वो सारा बता दिया। तो ऐसे टाइम पे ना वो मतलब होते ना कि आपको कुछ मांगा है उन्होंने 10 टाइम्स दिया, ऐसा होता है कभी कभी, इसलिए एंड दिस इज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन when you are appearing for any interview, then this is very expected question to know the names of the RBI governors, because RBI governor is a kind of a, हम क्या कहते हैं, ये पब्लिक फिगर है, ठीक है। इनका नाम न्यूज़पेपर में एवरीडे आता है, हर दिन कोई ना कोई नाम आता है गवर्नर, इसलिए ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, तो ये पूरा उसने बताया, जरूरी है कि नहीं जरूरी है, बट इफ यू हैव इंटरेस्ट पढ़ना है, ठीक है, आपको पढ़ना। और मेरा तो हॉबी है कॉइन कलेक्शन का, नोट्स कलेक्शन, तो आई हैव अ नोट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल गवर्नर्स। पहले जो गवर्नर है उन्होंने साइन नहीं किया था नोट, ऑसबॉर्न स्मिथ ने कोई गवर्नर का एज अ गवर्नर नोट साइन नहीं किया, बाकी सारे गवर्नर के नोट्स के साइन मेरे पास है, तो माय हॉबी था मेरा इसलिए। यस, बाद में बाकी कुछ मैंने थोड़ा सा ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना कि कट ऑफ जो था 2.25, ठीक है, तो मैंने उस टाइम वीडियो बनाया था कट ऑफ कितना रहेगा, तो वो सही आया, तो ये आपको ध्यान देना है टेक्निक। तो राइट नाउ एक मिनट, सो राइट नाउ माय क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, आरबीआई के पूरे प्रोसेस में, इन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ आरबीआई, लाइक फेज 1 4 सेक्शन, फेज 2 3 सब्जेक्ट्स, इंटरव्यू, आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ।
आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। यू कैन राइट, देखो किसी ने ऑल कहा है, ठीक है, जैसे फेज 1 में कौन डिफिकल्ट लगता है, या फेज 2 में मुझे पीएसआई डिफिकल्ट लगता है, या मुझे इंटरव्यू से डर लगता है, या डिस्क्रिप्टिव में डर लगता है, ठीक है, तो आपको भी पता चलेगा कि बाकी लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऑफ ऑल पेपर्स, ओके, नेचर ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ओके, फेज 1 क्वांट एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। कुछ लोगों का मल्टीपल फियर है, और ये होता है, सबका है, ऐसा नहीं है। जो लोग एग्जाम में देते कुछ ना कुछ फियर तो रहता है। तो यहाँ पर मैं जितना देख रहा हूँ ना, मुझे मैक्सिमम दिख रहा है क्वांट एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, क्वांट एंड डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मुझे बताओ, आपने स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आपका ग्रेजुएशन तक पूरा लिखा है, मुझे बताइए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है ना कि हम पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा याद करने का ट्राई करते हैं और एग्जाम में जाके लिखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल आवर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वी हैव डन द सेम प्रोसीजर, करेक्ट। मतलब मगिंग अप का आपको प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं, वो आपको लगता है, ठीक है। अदरवाइज हमने सारा इंजीनियरिंग है, बीकॉम है, बीए है, बीएससी, सारा हमने इसी तरीके से किया है। हम बुक पढ़ते थे, थोड़ा सा रट्टा लगाते थे, थोड़ा सा समझने का ट्राई करते थे, एंड एग्जामिनेशन में हम लिखते थे। उस टाइम हम एग्जामिनेशन पेपर पेन पे लिखते थे, सही है, करेक्ट है। अभी दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइए कि आपको सबको टाइपिंग आती है। नाउअडेज वी आर कंटिन्यूअसली ऑन आवर पीस, हम टाइपिंग करते हैं, करेक्ट, सब लोग टाइपिंग करते हैं। ऐसा कभी किसी का दिन जाता नहीं होगा कि हम टाइपिंग करें ऑन लैपटॉप, ऑन पीसी, करेक्ट है। यानी कि यू हैव द प्रैक्टिस ऑफ टाइपिंग, you have the practice of giving such examination where some kind of a memory skill, some kind of understanding is required. तो मुझे बताओ फिर हमें ये डिस्क्रिप्टिव का डर क्यों लगा? मतलब आपको मेमोरी याद करना भी आ जाता है, आपको टाइपिंग भी आता मेमोरी का प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो देखो मैंने प्रॉब्लम ये याद ही सबको नहीं आता। ये प्रॉब्लम आपको लगता है एक्चुअली है नहीं, बिकॉज बचपन से लेके हमने ऐसे ही ट्रेनिंग दी है, वी हैव ट्रेन्ड लाइक फॉर दिस, ठीक है। 60 वर्ड्स पर मिनट, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हमें लगता है 20 या 25 मिनट पर, ठीक है। मैं भी वो बताता हूँ। देखो प्रॉब्लम ये इसलिए आता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हो क्या रहा है कि दिस इज अ एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 1.5 लाख लोग यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, 1.5 लाख, 222 के आसपास सीट है, ठीक है, 222 का कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन यहाँ पर बहुत है। तो अभी यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ लोगों को लगता है कि टाइपिंग का प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम टाइपिंग का नहीं है। आई थिंक प्रॉब्लम इज ऑफ कंटेंट। इफ यू हैव अ कंटेंट, इफ यू हैव अ कंटेंट, देन टाइपिंग विल कम ऑटोमेटिक। अगर मैं आपको कहूंगा कि खुद के ऊपर 400 वर्ड लिखिए और देखिए कि आपका स्पीड क्या है, आपका स्पीड क्या है, डेफिनेटली स्पीड आपका 25-30 मिनट्स पर वर्ड्स पर मिनट डेफिनेटली होगा। तो स्पीड का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका क्या कहते हैं कंटेंट का। और बहुत सारे स्टूडेंट वो प्रैक्टिस करते नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस करते नहीं। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द राइट कंटेंट, आपके पास सही कंटेंट होना चाहिए, आपके पास सही डायरेक्शन देने के लिए मेंटर्स होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे ना रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं, लाइव क्लास एवरीडे 8:15, आज भी क्लास। तो व्हाई लाइव क्लासेस आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज you first read the notes, then you will watch some recorded video, then you will get near about 50 to 60% understanding of that content or that topic. Then you will come to live class, you will attend the live class, your understanding will increase, and then in the, we can say, in the practice session you will write the answer, and then our expert will evaluate, and then again we'll see the model answers. इस तरीके से आप करोगे ना तो बिल्कुल डर आपको नहीं लगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको कंटेंट पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव में फॉर एग्जांपल पीडीएफ पढ़ लीजिए, देन वीडियो देख लीजिए, लाइव क्लास आप अटेंड करेंगे, देन यू विल राइट द आंसर्स, उसको आपको चेक कराना है किसी से, उसके फीडबैक पे आप काम करोगे, और फिर वो जो पेपर है जो आपने लिखा है उसका लाइव डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है।
तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये हमने वहां पे डेवलप किया। तो लास्ट ईयर मैंने क्या किया था आपको बताता हूँ। हमारे पास लास्ट ईयर आई थिंक, इतना नंबर मुझे याद नहीं, 1000-1200 के आसपास लोग होंगे। लेकिन ना स्टूडेंट्स क्या है ना, आंसर लिखने के लिए ना आते नहीं, सिर्फ 50-60 लोग आते थे क्लास में। तो जब रिजल्ट आ गया फाइनल, स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया कि सर मार्क्स कम आए। तो मेरा पहला क्वेश्चन था उनको, हाउ मेनी फेज 2 मॉक टेस्ट यू हैव सॉल्व्ड। उनका आंसर होता था 0 या एट द मैक्स 1। आप देखिए, हमें ना, मैं आपको कहूंगा कि अभी सबको आंसर राइटिंग करना है, लेकिन मैं अगर आपको कहूंगा कि लिखो, तो कोई नहीं लिखेगा। वाई नहीं, क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि उसको क्या कहते हैं ना, इट इज नॉट दैट इज इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन आपको ना दिमाग में ये रहना चाहिए कि इफ आई डू ऑल दिस एक्सरसाइजेस, इफ आई गेट सेलेक्टेड इनटू आरबीआई, देन व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ आई विल गेट आफ्टर जॉइनिंग आरबीआई। ये आपके दिमाग में एवरी टाइम होना चाहिए, तभी आपको वो मोटिवेशन मिलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में इतनी सारी चीजें क्यों बताई, ऐसा होता है वैसे होता है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स का एग्जांपल क्यों बताया आपको कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए गया, ये क्यों बताया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स ना वी डोंट रियलाइज व्हाट वी विल गेट आफ्टर डूइंग दिस। तो अभी तो मैंने बाकी बताया भी नहीं आपको कि यार आरबीआई में कितना लैविश लाइफ होता है। व्हाई पीपल आर स्टडीइंग फॉर आरबीआई? क्योंकि बहुत लग्जरियस लाइफ है। मुंबई में जहां पर आरबीआई के क्वार्टर्स है, वहां पर नॉर्मल लोग रह नहीं सकते, बिकॉज 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रेंट है रहने का पर मंथ। आरबीआई वहां पर आपको 2 BHK क्वार्टर्स में, ठीक है। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो आपके दिमाग में वो रहना चाहिए। एंड देन यस आशीष, आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। राइट नाउ व्हेन यू आर आस्किंग ना, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, बिकॉज देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, यू राइट क्वेश्चन देयर, तो ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, हु चेक द डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है विनय। फ्रॉम यूर साइड इट डजंट मैटर हु इज चेकिंग द पेपर। लेकिन मैं आपको आंसर बता दूंगा, पर्सन चेक कर रहा है, ह्यूमन पेपर चेक कर रहा है, लेकिन आपके साइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या है, सॉफ्टवेयर चेक करे या ह्यूमन चेक करे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इसका आंसर आरबीआई ने दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर चेक करता है, मैन्युअली चेक होता है। इसका आरटीआई का रिप्लाई आया था, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आंसर शुड बी वेरी स्टैंडर्ड। देखो क्या है ना, यहाँ पे लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज हर एक की अलग अलग, ठीक है। हर एक की अलग अलग लैंग्वेज है। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, बताओ व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। आपके दिमाग में जो है ना, वो सामने वाले को कन्वे होना चाहिए। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, नॉट अ वेरी हाई फाई लैंग्वेज। एंड यू कैन राइट इन हिंदी आल्सो। स्पेलिंग मिस्टेक, यस स्पेलिंग मिस्टेक होंगे तो मार्क्स कटेंगे, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। अगर आप बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, क्योंकि वो पर्सन चेक कर रहा है, वेदर पर्सन चेक कर रहा है या सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है, वो मिस्टेक है, ठीक है। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग आरबीआई, हमारा जो काम है आपको पता है क्या है? हमारा काम है लेटर्स लिखना एंड ऑफिस नोट बनाना। तो हमें याद है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक पे हमें एक ईडी सीजीएम सर ने लेक्चर दिया। So when you write any letter to any XYZ organization, then you are not writing letter. It is written by the Reserve Bank of India. और वहां पर मिस्टेक होगा तो लोग कहेंगे कि देखो आरबीआई के लोग हैं जिनको स्पेलिंग नहीं आता। तो स्पेलिंग सही होना ये जरूरी है, कहीं पर भी जरूरी है, ठीक है। सो whenever you are writing any answer of English paper or ESI anything, your English should be error free, ठीक है। बहुत हाई फाई वर्ड यूज करने को मैं नहीं बोल रहा हूं, बट आपको करेक्ट इंग्लिश लिखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, पंक्चुएशन हो, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वर्ड लिमिट का इतना कुछ नहीं, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। दे हैव सजेस्टेड वर्ड लिमिट ऑफ 600 वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट 2 आंसर्स फॉर 600 वर्ड्स। 2 आंसर्स आपके हो गए 600, ठीक है। 2 आंसर हो गए 400 प्लस 400, तो ये हो गया आपके 2000, ठीक है। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, ये 15, ये 10 और ये 10। तो आइडियली आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं? 2000 वर्ड्स लिखने हैं 90 मिनट्स में, लेकिन हम मिनट्स पकड़ेंगे 800, 80 मिनट्स पकड़ेंगे हम। 10 मिनट आपको सोचने के लिए इसके लिए,
इसका मतलब ही ये आता है 25 वर्ड्स पर मिनट, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर मैंने काफी स्टूडेंट से बात किया, तो उन्होंने कहा सर वी हैव रिटन अवर आंसर्स इन 400 to 600 वर्ड्स आल्सो। तो अगर आपके कंटेंट में दम है, हम कहते हैं कि इफ योर आंसर्स आर वेरी गुड, देन बहुत कम में तो नहीं होगा। अगर आप ये 2000 के जगह पे 800 लिखेंगे तो नहीं चले, बट 1400 to 1600 चले। सो 1600 मीन्स 20 वर्ड्स पर मिनट, और ये स्पीड तो किसी का भी है। आप में से सबका स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट डेफिनेटली है। आप टाइप करके देखिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, आपके खुद के ऊपर एक 10 मिनट देके टाइपिंग करके देखिए, 10 मिनट, और देखिए आप कितने वर्ड्स लिखते हैं। टाइपिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम है आपका कंटेंट का। इफ यू हैव अ राइट कंटेंट एंड देन योर इंग्लिश शुड बी, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बहुत हाई फाई इंग्लिश होनी चाहिए, आपकी समझने वाली इंग्लिश होनी चाहिए, लेकिन उसमें मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। और लास्ट ईयर हमने 5 पेपर लिए थे, और मैं ये भी बताता हूँ आपको, हमने 5 पेपर किए, 5 पेपर हर सब्जेक्ट के, यानी कि टोटल 15 पेपर हो गए। और एवरी डे स्टूडेंट्स पेपर लिखते थे दोपहर को, एंड द इवनिंग हम उसका एनालिसिस करते थे, सारे क्वेश्चन कैसे लिखे, और उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी मिलता। लेकिन आपको लिखना है। देखो स्विमिंग जो है ना, वो पढ़ने से नहीं होगा। स्विमिंग के लिए आपको पानी के अंदर उतरना, कितना भी पढ़ लो, कितना भी देख लो, नहीं हो। तो ये भी ऐसा ही है, आंसर राइटिंग ऐसा ही है। लेकिन आप समझ लीजिए, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, they are not going to allow you to sit to write the phase 2 examination unless you clear phase 1 examination। ये दिमाग में याद रखना। 1.5 लाख लोग बैठेंगे, 3,500 लोगों को वो बुलाएंगे पेपर लिखने के लिए। तो इसलिए फेज 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 98% लोग उसमें फेल होते हैं। 98% स्टूडेंट्स फेल इन फेज 1 एग्जाम। तो इसीलिए इफ यू सी, ऑल स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल स्टेजेस। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो लोग इंटरव्यू देते हैं इस साल, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यार हमारा निकल जाएगा, लेकिन कभी कभी उनका फेज 1 भी रह जाता है, बिकॉज दे थिंक दैट फेज 1 इज नाउ आई कैन क्लियर इजीली। ऐसा नहीं है। आपने यूपीएससी में भी देखा होगा, लोग आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, बिकॉज एवरी ईयर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, बट जीए पढ़ना पड़ेगा, क्वांट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए फेज 1 इज वेरी क्रुशियल। तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या कंसेप्ट है, क्लासेस अटेंड करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, और उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि फेज 2 का डर लोगों में है, लेकिन आप ये समझिए कि वहां तक पहुंचना है। तब यहाँ पे ना ये मतलब ऐसा कि यार एवरी स्टेज इज इम्पोर्टेंट। एंड आपको आपने सिर्फ किसी ने इंटरव्यू के बारे में लिखा नहीं, 1-2 लोगों ने लिखा होगा। इंटरव्यू भी बहुत बड़ा हर्डल है, because interview is for 75 marks. You can get 3 marks also and 73-74 marks also. तो आपको ना यहाँ पर किसी भी स्टेज को लाइटली नहीं देना है। मुझे याद है लास्ट ईयर रीजनिंग ठीक ठाक था, तो लोगों ने रीजनिंग को निगलेक्ट किया, लोग रीजनिंग में फेल हो गए। सो डोंट टेक एनी सेक्शन लाइटली, ना क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, ईएसआई, एफएम, इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू अगर आपको करना है तो जो हम 7 स्टेप का है ना, उसमें सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सिलेबस समझना है, आपका खुद का स्वॉट एनालिसिस करना है, देन फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, ये सारे स्टेजेस आपके इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको प्रैक्टिस भी करना है, मॉक टेस्ट देना है, पेपर लिखना है, उसके बाद आपको इवेलुएट भी करवा के लेना है। देखो ये मैं अभी मेरा ये 10वां साल, ठीक है, 10 इयर्स, ठीक है, 10th ईयर है मेरा। इतने कम टाइम में फेज 2 का क्लियर कैसे कर, इतना कम टाइम, 21 days into 10 hours, 210 hours। इसमें 2 बार आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, इफ यू हैव द राइट कंटेंट इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू हैव द राइट मेंटर्स इन फ्रंट ऑफ। तो ये आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से हजारों 5,000 लोगों को गाइड किया,
ठीक है, तो चैताली अभी आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर, आप फेज 1 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जीए पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अभी जो मैंने जो प्लान किया है 90 डेज का, पर्पसफुली मैंने इंटीग्रेटेड प्लान बनाया हुआ। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, फेज 1 प्लस फेज 2 की तैयारी साथ में चले। Why it is important? Because just tell me, I'm asking one question to all of you. If there is a one question on monetary policy committee, अगर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पे उनको फ्रेम करना है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ आ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ पर आ सकता है, आप मुझे बताइए। यू टेल मी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वो एग्जाम में फेज 1 में आ सकता है? यस, आ सकता है। करेक्ट, फेज 1 में आ सकता है? यस। ईएसआई में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में? यस। डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है? यस। फाइनेंस में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में? यस। मेंस डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है? यस। इंग्लिश में आ सकता है? यस। इन्फ्लेशन पे ऐसे आ सकता है? यस। इंटर में आ सकता है? यस। सो मीनिंग इज दैट यू हैव टू स्टडी द टॉपिक. Don't think that whether it is coming for GA or ESI or finance or English or inter. Similarly, नरेगा स्कीम है, कहाँ पे आ सकती है? कहीं भी आ सकती है। सेबी के बारे में क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो ये कहीं पे भी आ सकता है ये। तो इसीलिए अभी मेरा जो कल, आई थिंक मेरा फर्स्ट फाइनेंस का क्लास हो गया 2 दिन के पहले, मेरा टॉपिक था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस। तो मैंने उनको वही बोला कि you are like attending the ESI class, but it will help you to get more marks in the phase 1. तो वो बैरियर आप दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट वो आपको प्रीलिम्स पे नहीं आएगा। अदरवाइज ESI में जितना कुछ है, फाइनेंस में जितना कुछ है, वो आपको कहीं पे भी आ सकता है, फेज 1 में आ सकता है। इसीलिए आपको साइमल्टेनियसली पढ़ाई करनी है। सो रीड ESI, रीड फाइनेंस, फॉर व्हाट रीजन? टू गेट गुड मार्क्स इन जीए, क्योंकि ईएसआई और फाइनेंस का पूरा जीए के लिए उतना ही वैलिड, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको मगिंग अप करना पड़ेगा। मुझे अभी मैंने कल परसों ही वो एक्सरसाइज की, बहुत सारा डेटा दिया था और मैंने 15 मिनट में बताया कैसे कैसे करना है, और जितने सारे स्टूडेंट थे सारे के सारे स्टूडेंट का याद रहेगा। अभी इसमें कोई है तो मुझे बताओ, क्लास में कोई है यहाँ पर कि जिसने उस दिन क्लासरूम में अटेंड किया था क्लास? कोई है यहाँ पर? यस। आप देखो उस क्लास में सबको याद रह गया था ना, कहाँ कहाँ क्या है, आपको याद होगा। फार्मर है, मुझे भी मतलब ऐसा विजुअलाइज करके दिया था, ऐसा विजुअलाइज करके दिया था कि याद रह जाए। और कभी कभी ऐसे होता है ना, आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो अगर हम नहीं भूलेंगे तो हमें तकलीफ होती है। तो मैं कभी कभी क्लास में ऐसा पढ़ाता हूँ और मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि आप ये भूल के दिखाइए, आप ये भूल के दिखाइए, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको पता है होती है कि जो हमें भूलनी चाहिए, अदरवाइज हमें लाइफ में तकलीफ होती है। तो हमारा जो भूलने का जो स्किल है ना, वो बहुत अच्छा है। आप जस्ट सोचिए, अगर हमें ये भूलने का अगर नहीं होता स्किल ना, तो हम पागल हो जाते, इतना डेटा कैसे रखेंगे। लेकिन कुछ कुछ टेक्निक्स होती है ना जो हम यूज करेंगे तो हमें याद रहेगा। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने मूवी देखा होगा शोले? कोई भी मूवी पकड़ लीजिए, हमें सब कुछ याद है, पूरा का पूरा याद है। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑडियो विजुअल। तो इसीलिए जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमें हमें उसको लिखना है एक फॉर्मेट में, और उसको कुछ कनेक्शन बनाने, हमें याद रहेगा। और मेरे क्लास में जितने लोग थे ना, उनको, आपको भी लगता होगा, लेकिन मैंने एग्जांपल बता दी कि चलो अभी मैंने कहा आंख बंद करो और आंख बंद के बताओ, सारे स्टूडेंट ने बताया। टाइम लगता है, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी, इट इज पेनफुल एक्चुअली, इट इज पेनफुल, ठीक है। जैसे हमें बॉडी बनाने के लिए जैसे मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज, उसी तरीके से ब्रेन में एक्टिविटी करने के लिए यू हैव टू डू एफर्ट्स, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ता है। और मैंने देखा है कि आज के डेट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है, जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम नहीं है, जैसे सेबी है, नाबार्ड है, आरबीआई है, आईएफएससीए है, आईआरडीए है, यहाँ पर आपको दोनों स्किल चाहिए। यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, एंड सेकंड आपको थोड़ा मगिंग अप भी आना चाहिए, ठीक है। मगिंग अप भी आना चाहिए, दोनों आपको चाहिए। आपको समझ भी आना चाहिए। व्हाई अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड? बिकॉज इफ यू हैव द डेटा, मैं आपको डेटा देता हूं, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कोरिलेट इट विद, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक सम काइंड ऑफ अ कंक्लूजन फ्रॉम इट, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं।
अभी सब लोगों को पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन 142 करोड़ है, ये सबको पता है, लेकिन इसका करे क्या? ये क्या, ये प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है? तो इसके लिए थोड़ा बहुत थिंकिंग चाहिए, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो इसका देखो, ये सिचुएशन अच्छी भी है, बुरी भी है। बुरी इसलिए है कि इतने सारे लोग आ गए, तो सारे फील्ड में कंपटीशन है। यू गो एनीवेयर, इन प्राइवेट, इन गवर्नमेंट जॉब, इन बिजनेस, एवरीवेयर देयर इज अ कंपटीशन। और ये अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ये पॉपुलेशन सिर्फ 142 करोड़ नहीं है, इसका जो मीडियन एज है वो भी कम है। सो इट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। और अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो ये डेमोग्राफिक बर्डन हो जाएगा। अगर ये लोगों ने काम नहीं किया तो इट विल बिकम डेमोग्राफिक बर्डन। तो सिर्फ ओनली नंबर्स याद करने से नहीं होगा, वी हैव दैट एनालिटिकल एबिलिटी, कि इसको हम कहते हैं ना कि कनेक्ट द डॉट्स, कि कैसे डॉट्स कनेक्ट करें, तो ये भी पता चलना चाहिए। इसलिए यू शुड हैव अ गुड मेंटर, ठीक है? एमबीए पर कंपटीशन भी, कहीं पे भी जाओ, यू टेक एनी फील्ड, यू जस्ट टेल मी एनी फील्ड दैट वेयर देयर इज नो कंपटीशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिजनेस में जाइए, प्राइवेट में जाइए, कांस्टेबल के जॉब में जाइए, किधर भी जाइए, लाखों में लोग हैं, ठीक है? लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है ना, भीड़ बहुत ज्यादा होती है समटाइम्स। भीड़ तो है, लेकिन राइट डायरेक्शन अगर मिलेगी तो फिर हम जा सकते हैं, ठीक है, अच्छे डायरेक्शन। बाकी ये एलिजिबिलिटी कंडीशन और ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। देखो, पॉपुलेशन इज नॉट प्रॉब्लम, पॉपुलेशन इज रियलिटी, पॉपुलेशन इज रियलिटी। एंड इफ यू नो, अगर आपने देखा होगा, आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पर टीएफआर कितना है? हाउ मच इज द टीएफआर? टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? आप में से अगर किसी को पता होगा, यस। एंड मुझे बताइए रिप्लेसमेंट रेट कितना है? हाउ मच इज द रिप्लेसमेंट रेट? रिप्लेसमेंट रेट इज 2.1 एंड आवर टोटल फर्टिलिटी इज 20। इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज में, अभी इंडिया का पॉपुलेशन इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम द बर्थ साइड, ठीक है? 2.1 टोटल फर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि 2 लोग जा रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर नाउ पॉपुलेशन इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम द बर्थ साइड, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन इसलिए होगा इंक्रीज क्योंकि जो डेथ रेट है वो कम हुआ है मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से। तो इसलिए अभी हम जो कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉज आना चाहिए, तो वो अभी आने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो टीएफआर है वो 2 पे आ चुका है। एक्चुअली इट्स 1.99, ठीक है? एंड पॉपुलेशन इज इन आवर सिलेबस। तो आपको ना ये सारे व्यूज पता होने चाहिए, इसलिए यू हैव टू चेक लाइक the mentors, who are your mentors, who is guiding you, what is their experience, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यस। बाकी ये इसके बारे में किसी को डाउट नहीं होगा, ये सारे एलिजिबिलिटी एज रिलेटेड है। बाकी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। लास्ट ईयर मैंने इतना एनालिसिस किया था, महाराष्ट्र से कितने हैं, दिल्ली से कितने हैं, स्टेट वाइज निकाला है मैंने पूरा डेटा, और इसके बाद मैंने सिटी वाइज भी निकाला था। ये सिटी वाइज है, देखो दिल्ली से कितने लोग हैं, हैदराबाद से कितने हैं, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, पुणे, ये सारे, मतलब ये तो सारे एक एक सिटी वाले हैं। आगरा से एक है, अल्मोड़ा है, अलवर है, औरंगाबाद है, भागलपुर, भिवानी, चेन्नई, ये सारे एक। ये इसलिए है क्योंकि होता क्या है ना, व्हेन वी सी दैट सम पर्सन फ्रॉम माय सिटी इज क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, देन आई फील कंफर्टेबल कि यार मेरा भी हो जाएगा, ठीक है? यस। बाकी फेज 1 कट ऑफ ये आप सबको पता है कि कितना कितना होता है, ये सारा मैक्सिमम मैंने कवर कर दिया। सो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट related to phase 1, related to phase 2, about the RBI, about the work profile, anything, क्योंकि देखो मैं इस प्रोसेस में पिछले 10 साल से हूँ, एंड हमने सीपी सर ने और मैंने खुद भी ये एग्जाम क्लियर किया, सो दैट वी कैन गाइड। यस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको सारे, देखो यहाँ पे ना यू विल गेट एवरीथिंग इज एवरीथिंग, एंड इट्स योर जॉब टू कंप्लीट इट। डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज आपको पता है मुझे तो 10 साल का एक्सपीरियंस, तो मैं आपको सारा बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि दिन रात इसी प्रोसेस में, ठीक है? सो यू हैव द डेटा, बस आप मुझे बताइए। नाउ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, कैन यू फिनिश द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट द क्लासेस? ये मेरा क्वेश्चन है, अदरवाइज यू विल गेट एवरीथिंग। एंड लास्ट ईयर सीपी सर हमने ना वीडियोस बनाए थे, जैसे एग्जाम हो गया ना, वी हैव मेड द वीडियोस एंड वी हैव शोड द प्रूफ एक्चुअली कि कितना कितना कंटेंट हमारे कंटेंट से आया। देखो यू कैन ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट,
बस यू हैव टू चेक टू एस्पेक्ट, मेन थिंग देखो, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, रिजल्ट तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। So there are two things you have to check. One is like who is teaching you, and second, हम क्या कहते हैं कि यार ये कंटेंट से कितना आता है। तो आप देखिए ESI डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव 100% कंटेंट आया था, विद प्रूफ हमने दिखाया है। एंड ESI ऑब्जेक्टिव में, FM ऑब्जेक्टिव में आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आए थे, बाकी सारे आए। तो वो वीडियो अवेलेबल है टारगेट RBI यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, कंप्लीट है, सब कुछ आया हुआ। तो वो तो क्वेश्चन है ही नहीं। देखो फेज 2 के जो क्वेश्चन है ना, फेज 2 इज वेरी इजी टू फ्रेम द क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज वी हैव द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सिंपल है, एक टॉपिक ले लो, क्वेश्चन बनाओ। प्रॉब्लम ना फेज 1 में है, बिकॉज इन फेज 1 देयर इज नो क्वेश्चन, नो सिलेबस। भारतीय पाठक, देखो भारतीय पाठक बुक के अच्छा है, बट यू नो दैट RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन इज डायनामिक एग्जामिनेशन। Dynamic means current affairs based, whatever is happening right now they are asking. And if you pick any book, then you will get the at least 2 to 3 years old data. और अभी बुक की बात हो चुकी है, तो अभी यहाँ पर CP सर आप थोड़ा सा हमारा बुक का जो एक हुआ है अरेंजमेंट, उसके बारे में बताइए, सो दैट ना पीपल विल गेट द कॉन्फिडेंस। हाँ, तो बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं चैट में लगातार रिप्लाई करने की कोशिश भी कर रहा था, तो उसको पढ़ के आइडिया भी लगता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के हैं। तो देखिए, एक तो मतलब सिलेबस कोई लिमिटेड होता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और फेज 1 का तो दिया हुआ भी नहीं है यहाँ पे, और दिया भी नहीं होता है कहीं भी, फेज 1 का दिया नहीं होता है। तो इट इज मोर ऑफ द प्रैक्टिस। आप अगर देखेंगे तो हमने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर फेज 1। आप उन टॉपिक को पढ़ेंगे, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। उसके अलावा हमने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितनी दूरी और चलनी है, आप तैयारी से कितना दूर है। एटलीस्ट एक टेस्ट तो आप जरूर दीजिए, या तो आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए या आप मॉक टेस्ट ले लीजिए, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। See, because it is very, very important to know where you stand today and how much is required in every section. Because phase 1 is going to be really, really very challenging. I am telling you this phase 2, होता क्या है ना, notification में RBI has given phase 2 syllabus. So all our focus goes towards the phase 2 preparation, economics, finance, management, and then descriptive writing. So we start preparing for phase 2. वी फील कि यार ये बहुत मुश्किल है और उसका सिलेबस दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस टिल डेट, सो एवरीथिंग इज न्यू टू यू। बट द चैलेंज इज फेज 1, द रियल चैलेंज इज फेज 1। जब मैंने दिया था तो उस टाइम में तो हमारा फेज 2 एग्जाम वाज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव, सेम सिलेबस व्हिच इज इवन टुडे। द ओनली एडिशन इज द एथिक्स पार्ट। एथिक्स 2 साल पहले ऐड हुआ है, 2 साल ही हुआ है ना सुशील सर अभी एथिक्स को? हाँ, तो उसके पहले एथिक्स नहीं होता था, तो बाकी सब कुछ सेम था। एंड वन डिफरेंस वाज इन आवर टाइम वी हैव टू राइट विद पेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर, आज आपको कंप्यूटर में टाइप करना है, तो बाकी कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है। बट आई एम टेलिंग यू माय ओन, एज सुशील सर सेड कि आई डोंट कम फ्रॉम से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस बैकग्राउंड, आई वाज एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। मेरे को लेकिन जब फेज 1 निकल गया था ना, आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि अब फेज 2 में मैं शायद अच्छा कर पाऊंगा, बिकॉज आई हैड द हैबिट ऑफ राइटिंग। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था वहां पे कि आई कैन पुट अप माई थॉट्स बेटर। इट्स ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल मैनेजमेंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। RBI के केस में नाम मैनेजमेंट है, बट आता क्या है, उसको HRM बोलते हैं बहुत जगह, या आपको जो बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी बोलते हैं उसको, वो आता है वहां पे। तो दैट सिलेबस इज एक्चुअली नॉट दैट ह्यूज। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर, फेज 2 सिलेबस इज आल्सो नॉट दैट ह्यूज, प्रोवाइडेड यू गेट ऑल दिस मटेरियल एट वन प्लेस। जैसे हमारे मतलब आप कोर्स में लोगे तो आपको सारा मटेरियल एक साथ मिल जाएगा। नाउ इट्स ए मैटर ऑफ रीडिंग एंड स्टडिंग। रीडिंग इज नॉट एनफ जी, मैंने एक बार सारे वीडियो देख लिए, सारे नोट्स एक बार पढ़ लिए, तो कौन सा याद हो गए वो, ठीक है, और समझ में कितना आ गया आपको। आई एम टेलिंग यू, आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन एनपीवी एंड IRR। वो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा ना, तब भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम आपको रिस्क पढ़ाएंगे, तो हमने बोला क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ये तो एक से लग रहे हैं सारे रिस्क. So it is not just studying. You have to again discuss, come to class, understand it, because understanding will help you in doing the objective question. And guys, please put it on mute, guys. Hello, mute में कर लो आप प्लीज अपना. तो आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, एंड देन यू हैव टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन टुडे ऑल अराउंड अस. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दैट, सम आर रिलेटेड टू थ्योरी आल्सो. सो इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस आल्सो इन द फेज 2. तो दोनों ही एग्जाम में फेज 1 और फेज 2 में प्रैक्टिस का बहुत गेम है, बट बिफोर यू डू प्रैक्टिस यू हैव टू हैव फंडामेंटल्स. नहीं तो आप कितने भी टेस्ट करते चले जाओ, बार बार आप वही मिस्टेक कर रहे होगे. तो यू हैव टू मिक्स योर लर्निंग एंड प्रैक्टिस, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, लर्निंग एंड प्रैक्टिस. और वहां पे जब आपके पास टाइम कम होता है, तो आज के डेट में क्या है, सी अंडरस्टैंड इन टुडेज वर्ल्ड वी आर डीलिंग विद इंफॉर्मेशन ओवरलोड. आज सब कुछ मिलता है इंटरनेट में, और बाकी जो आपको नहीं आता है वो चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो बता देगा आपको. वैसे वो बहुत कुछ गलत भी बताता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू स्टिल ओपन आवर माइंड. विकिपीडिया में भी बहुत कुछ कई बार चीजें गलती हो जाती हैं, बिकॉज दैट इज अगेन ए प्लेटफॉर्म कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द प्लेसेस. सो वी हैव टू ऑलवेज ओपन आवर माइंड. सो पॉइंट हियर इज वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड. इतना इंफॉर्मेशन हम सबके पास आ रहा है, from WhatsApp, from Telegram, from Instagram, from email, कि हमको कंज्यूम करने में दिक्कत होती है, राइट. तो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट ऑल नॉट टू डू, व्हाट ऑल नॉट टू स्टडी, व्हाट ऑल नॉट टू फॉलो. तो जो गाइडेंस है ना, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम जो बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजी में दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि ये चीजें नहीं करनी है. बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है. आप एक टेलीग्राम ग्रुप में घुस जाओगे, वहां कोई एक बंदा बोलेगा मेरे को एक नया टेस्ट मिला है, कर लो. आप लग गए उसके पीछे. मुझे एक नया नोट मिला है, कर लो. अरे नोट्स की कमी है क्या इतना? और जो फ्री में सर्कुलेट हो रहा है उसमें से मैक्सिमम तो कचरा है, कॉपी पेस्ट है, यहाँ से उठाया वहां से उठाया. आजकल सारी बुक, चाहे आपको प्रसन्ना चंद्रा हो, चाहे भारती पाठक हो, सबके तो आपको पीडीएफ मिल जाते हैं. वो थोड़ा इधर से उठाया, थोड़ा उधर से उठाया, बहुत सारा कंटेंट बना दिया. अब मेरे पास 500 पेज का नोट्स आ गया है. अरे वो 500 पेज क्या, मैं आपको 5000 पेज का नोट्स लाके दे दूंगा. पॉइंट तो तब है जब 50 पेज का नोट मिलेगा, राइट. सो दैट इज बिकॉज इन दैट 50 पेज यू हैव टू स्टडी अगेन एंड अगेन. एक वो 5000 पेज पढ़ के खत्म थोड़ा होने वाला है कहानी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल. इट इज नॉट लॉट ऑफ सिलेबस, अनलिमिटेड स्टडी, but it is your focused preparation, repetition, lot of practice, doing mistake, learning from mistake, somebody telling you what kind of mistake you are doing and how to improve that. टाइम कम होता है एग्जाम में, फेज 1 में स्पेशली कम होता है. कट ऑफ क्लियर करना, सेक्शनल कट ऑफ करना है. पहले आपको ऑल 4 सेक्शंस हैव ए सेक्शनल कट ऑफ, देन देयर इज एन ओवरऑल कट ऑफ. क्वांट इज बिकमिंग टफर एवरी ईयर. लोगों से मिनिमम स्कोर नहीं हो रहा है, तो वो आपको क्लियर करना है, बट आपको फिर ओवरऑल भी लाना है. जनरल अवेयरनेस, इट लुक्स लाइक इनफाइनाइट सिलेबस. जनरल अवेयरनेस का कोई रेंज ही नहीं है, इतना ज्यादा है जीए में. बट देयर ऑल्सो वी हैव मेड सम वीडियो, सुशील सर ने, मैंने, दोनों ने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स इन आरबीआई ग्रेड बी जनरल अवेयरनेस. आपको उससे गाइडेंस मिलेगी, प्लीज गो थ्रू दैट, बट अगेन यू हैव टू डू इट. So we will like keep talking about our experience of our selected student, but करना तो देखिए आपको पड़ेगा, और करना जब पड़ेगा, वो क्या नहीं करना है उसका ध्यान जरूर रखिएगा, कि these are the things I shall not do. So I am stopping it from my side, but I am answering the question. क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये व्हाट क्वेश्चन यू आर आस्किंग ना, देखो क्या होता है ना, यू आर आस्किंग लाइक 15 टाइम्स, सो आई विल आंसर इट. सबसे पहले तो ये जो है ना, what to choose for editorial for descriptive writing, आपको ये किसने बताया? Who told you that you have to choose the editorial for descriptive writing? You have to select the topic from the syllabus for the descriptive writing. You have to syllabus, जैसे IMF and World Bank select कीजिए. So now select any topic IMF and World Bank and write कीजिए उसपे. तो कभी-कभी क्या होता है ना, sometimes we get some information. मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले ना, you have to keep yourself away from the Telegram. वहां पर कोई भी आ जाता है, मैं सिर्फ किसी भी, मैं आपको बताऊं कैसे. एक बच्चा आता है, कोई भी आता है और बोलता है कि चलो हम एक पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाते हैं, या अदरवाइज आई विल गाइड यू. तो देखो जो सिंसियर कैंडिडेट ना, मुझे बताओ किसी के पास टाइम है दूसरे को पढ़ाने के लिए? खुद का तो पता नहीं हमें,
So you don't have to select any editorial for descriptive writing. You have to select the topic. Write a short note on sustainable development. लिखिए short note 200 वर्ड, ठीक है. Write a note on opening up of the Indian economy. लिखिए. तो ये एडिटोरियल लेना है. अगर एडिटोरियल लेना भी है तो see the syllabus and you can select it. Suppose there is any editorial regarding the population of India, then you can write it. But only आप मुझे बताओ कि if you can write it. But लेकिन किसी को तो देना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए. You will write it and then after that what? You have to give it to someone who will check your that answer and then they will give you the feedback from two perspective. One is from the content point of view and second is from the English perspective. Then you will work on that suggestion and you will again write the answer. तो देखो ये एडिटोरियल वीडियोरियल पे नहीं करना है, हमें डायरेक्टली एग्जाम पे जाना है. You go on our platform, take the test, write the answers. Our experts will give you the solution and the feedback. फिर उस फीडबैक पे काम कीजिए फिर से. एंड हमारे यहाँ पे जितने भी लाइव क्लास होते हैं वो सबका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा. यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल. सबको मिलेगा आपको. Newspaper, any newspaper you can write, any newspaper you can read. Don't wait for someone's conviction, because if you know 80 to 90% of the content of all newspaper is similar, so it's very easy. एक न्यूज़पेपर लीजिए 5 दिन पढ़िए, दूसरा लीजिए 5 दिन पढ़िए, तीसरा दिन पढ़िए, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो पढ़ लीजिए. ठीक है. इसके ऊपर मैं इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि आप टारगेट आरबीआई यूट्यूब देखिए, वहां पर ही आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. हाउ टू चूज टॉपिक फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मैं एवरी ईयर पिछले 10 साल से मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक देता हूं और उसी में से ऐसे आते हैं विद प्रूफ. कभी एक आया था, कभी 4 आए. इट्स वेरी इजी. देखो टॉपिक सेलेक्ट करने का भी प्रॉब्लम नहीं है. अगेन सेम क्वेश्चन इज देयर, व्हाट यू विल डू आफ्टर राइटिंग. इफ यू हैव रिटन एसे ऑन सम XYZ टॉपिक, आफ्टर दैट व्हाट? आपको किसी को देना पड़ेगा, पेपर कोई चेक करेगा, आपको फीडबैक देगा, आपके मिस्टेक्स बताएगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा. ऐसे आपको 10 बार करना पड़ेगा. आपको ऐसे 10 बार करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसीलिए आपको उस एंगल से ही देखना पड़ेगा. और यहाँ पर मैं आपको यही कहता हूँ, कोई भी हो, मतलब हम यहाँ पर है, ऐसे मार्केट में 4-5 लोग हैं, आप प्रॉपर ऑथेंटिक जो पर्सन है उसी को पूछिए. टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी के पीछे मत जाइए, बिकॉज यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, क्रेडेंशियल ऑफ द पर्सन. आपके सामने यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने खुद एग्जाम क्लियर किया है, 4-4, 5-5 साल काम किया है, जिन्होंने 500 से 600 लोगों को आरबीआई में भेजा है. ठीक है. तो वो है. तो इस तरीके से, इसीलिए ना क्या सर ने जो कहा ना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो डेफिनेटली है. आपके पास इतना सारा डेटा मिलेगा एंड यू गॉट कंफ्यूज्ड, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो इसीलिए जिनको एक्सपीरियंस है वो आपको डेटा बना के देंगे. ठीक है. सर दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी. देखो क्या है ना, आपका देखो क्या होता है ना, ये हर एक यूनिवर्सिटी का मुझे क्या आता है, लोग पूछते कि सर ये सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं वैलिड. So there is no mechanism available with us to see whether the document is valid or not. All instructions are given in the notification very clearly. You should have a 60% aggregate. Aggregate means पूरा सारा बना के. ठीक है. देखो अगर 6.6 उन्होंने फॉर्मूला दिया है, they have given the formula 6.75 CGPA means 60%. सिंपल फॉर्मूला है, जितना CGPA है उसमें से 0.75 माइनस कर दीजिए और 10 से मल्टीप्लाई. और सुशील सर, ये मैंने खोल के देखा, IIT कानपुर का है वो सर्टिफिकेट, तो मतलब द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूट इज आल्सो देयर बॉस. तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको. अगर IIT कानपुर में वो लिख के दे रहे हैं आपको कि उसमें लिखा है, मैंने पढ़ लिया, तो दिस इज वेरी क्लियर व्हाई यू आर इन डाउट. जय, कल हमारा सर एक सेशन है ना, CGM सर का सेशन है कल, आई थिंक. हाँ CGM सर के साथ तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपको मिल जाएगा. ठीक है. यस. तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर हमने ट्राई किया है, क्योंकि देखो वी आर इनटू दिस प्रोसेस इन डे एंड नाइट सिंस लास्ट 8 to 10 years. आप मुझे कुछ भी पूछिए,
मैं आपको आंसर दे दूंगा क्योंकि यही काम है, ठीक है, यही काम है। तो मैंने आपको देखो क्या होता है ना कि डिस्क्रिप्टिव में हमने फ्रेमवर्क अलग अलग पढ़ाए हुए, क्लासरूम में हम बैठ के आप टॉपिक देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। देखो आपको क्या है ना कि देखो आपने अभी स्कूल से लेके अब तक कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पढ़ाने के लिए चाहिए, अदरवाइज व्हाट विल हैपन आई विल टेल यू। लोग सिर्फ ढूंढते रहते कि सम मसीहा विल कम ऑन द टेलीग्राम एंड ही विल गाइड मी एंड देन वी विल गेट सेलेक्टेड। एक्सट्रीम भी, यस एक्सट्रीम भी हम एवरी ईयर करते हैं, एवरी ईयर एक्सट्रीम भी करते हैं। एक्सट्रीम भी का मतलब होता है क्लासरूम कोर्स immediately after phase 1 examination, means this year phase 1 exam will happen on 9th July. From 11th or 12th July we will conduct a 5-day session in New Delhi in classroom फिजिकल फॉर्मेट, जहां पर सर है मैं हूँ सब लोग पढ़ाएंगे और सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक 12 घंटे में सारा फेज 2 का सिलेबस आप लोग पढ़ाएंगे। वहां पर आंसर राइटिंग होगी, सामने होगी, सब लोग लिखेंगे, वहां के वहां आपको उसका डिस्कशन भी होगा, 5 दिन चलेगा, ठीक है। देखो रजत, आप कहीं पे भी एट एनी लोकेशन यू ब्रिंग 40 पीपल वी विल कम देयर एट एनी लोकेशन इंडिया में, एंड इन एनी लोकेशन if there are 40 people we will come, no problem at all, ठीक है। right now we have a request for the Delhi, तो हम दिल्ली में अभी करने वाले, ठीक है। तो इसके लिए आप ना हमारे कॉल जो नंबर है हमारे, आप उसके देखो हम कहीं पे भी करेंगे। हेमंत, यू टेल द नेम ऑफ द सिटी और नेम ऑफ द विलेज, 40% पीपल आर देयर वी विल कम, ठीक है। ये इतना क्लियर कट है। राइट नाउ वी आर कंडक्टिंग इन दिल्ली, ठीक है। और ऑनलाइन भी इफ यू आर नॉट एबल टू कम देन ऑनलाइन आल्सो वी हैव अ प्लान, पहले से ही प्लान दिया हुआ है, घर बैठ के भी आप पढ़ सकते हो। अभी तो राइट नाउ देखो, अभी हमारा जो प्लान है 75 प्लस 15 डेज वाला, वो 75 डेज में हम पूरा फेज 2 का सिलेबस खत्म करेंगे। उसके बाद फेज 1 होने के बाद फिर से खत्म करेंगे, 2 बार होगा। सो श्रीदेवी, if there are 40 people in Chennai we will conduct this session, and in Chennai we know that people don't understand Hindi, so there we will conduct course in 100% English, but here in Delhi it's like a mix, Hindi plus English, because as per the demand of the student, ठीक है। सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या लिखा है? देखो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ये होना चाहिए। सो यू शुड हैव अ नॉलेज टू राइट द आंसर एंड वी आर देयर टू, देखो इन डेप्थ मतलब कितना है, जो सिलेबस में दिया हुआ उसका अंडरस्टैंडिंग। आज से लेके every year I give the example of people clearing examination in 7 days also, ठीक है, 7 दिन। देखो depend upon, there are multiple things are there, if you have a right mentor, if you have the right content, ठीक है, आपके पास स्ट्रेटेजी है, सकता है 7 दिन में भी पॉसिबल है, एंड 2 साल में भी लोग टाइम वेस्ट करके इम्पॉसिबल बना देते। तो यू विल गेट बोथ द एग्जांपल, एक्सट्रीम एग्जांपल आल्सो। तो 60 डेज आर 60 तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें तो 2 बार पढ़ाई हो जाएगी। बस आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड राइट मेंटर को गाइडेंस देना है। यस प्लीज, वी विल टेक नाउ, वी विल टेक 2-3 क्वेश्चंस। यस प्लीज सर। या सर एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था कि जो सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं सर, जैसे ईएसआई के और एफएम के, तो सर ये जो भी 75 और 15 वाले में से जो लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं सर, ये इनफ है कवर करने के लिए वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स? देखो इनफ क्या है मैं पूछता हूँ, व्हाट इज इनफ? इनफ इज लाइक दैट यू आर रीडिंग all the notes given by us, you will solve all the tests, BPDA, PIB, EPF, live classes, mock test, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही किया तो हो जाए, ठीक है। whatever we are providing to you, because every year we will make a video after the examination that we will show actual content ये कहाँ से आया। और देखो इसमें से क्या होता है ना, सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव अटेंडेड माय क्लास ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन ना उसके बाद आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी वो याद रखने के लिए, अदरवाइज कैसे होगा? यू हैव टू रिमेम्बर समथिंग, ठीक है। Yeah, you whatever regarding the fees, you can call on our numbers, they will give the exact information, because we have 100 of courses, we actually don't know the exact price of the courses, so आप वहां पे फोन कीजिए, वो आपको बता देंगे वहां, ठीक है। कुछ डिस्काउंट मांगेंगे तो डिस्काउंट भी दे देंगे, ठीक है। यस, आई थिंक दिस इज गुड सेशन, गुड एंगेजमेंट। तो कल अगर कोई आरबीआई के बारे में आपको और कुछ पूछना होगा तो वी हैव आवर एक्स सीजीएम ऑफ आरबीआई अशोक सर, ही इज कमिंग
So you can join that session, and it will be more like, because he himself was in the many of the interviews of RBI Grade B. He has recently retired as a Chief General Manager of RBI. तो उस सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट इट विल बी मोर अबाउट नोइंग अबाउट RBI देन अबाउट द प्रिपरेशन. यस, नहीं सर, वो भी एक अच्छा है, बिकॉज ना जितना आरबीआई के बारे में पता चलेगा अभी तो उतना, मास्टर पढ़ा रहा, मेहनत कर रहा पूरा बेंच. यस, तो वो ज्यादा इच्छा होगा जाने की. यस. सर नाउ वी आर स्टॉपिंग. थैंक यू फॉर Hello. क्योंकि अपनी क्लास भी है. सुशील सर, आपकी भी क्लास है अभी. ठीक है. हाँ, तो बाकी आप चैट में पूछ सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हम दोबारा अपीयर होंगे, यूट्यूब में भी आते हैं, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू स्टूडेंट. सुशील सर तो आपको टेलीग्राम पर भी रिप्लाई कर पाते हैं, बट आई थिंक क्योंकि आपकी क्लास है तो वी हैव टू स्टॉप इट हियर. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट. हैव ए गुड लक. बाय बाय.